Good morning, everyone. You are watching French Easy with Devanshi, and in this video, we are going to study accents in French. So let's get started. So before moving further, please do visit my Instagram channel and my Facebook channel, French Easy 50 and Devanshi Jain French. So there's offer for you that I have started French for beginners classes, online classes through the Zoom class, and the batch starts on 25th March. So please do enroll, and you can get the information about on the by given numbers, and you can also see it on my Instagram and my Facebook channel. So types of accents. Accents की types हैं. Acute accent होता है. First accent is the acute accent. Okay. Next, grave accent, trema, cedilla, then circumflex. Acute, grave, trema, cedilla, circumflex. 5 accents are there total. In total, you are having 5 accents. Understood? So, no, अब हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास 5 accents हैं, but accents actually में क्या होते हैं? What are accents? So number line by line पढ़ेंगे. Accents are some signs and symbols. लिख लेते हैं यहाँ पे जो हमें important है उसको underline कर लेते हैं हम. They are the signs and symbols. Signs and symbols used above or below. उनकी position बताई है. Above or below the letters. किसके above या below? Letters के which will. और वो क्या करते हैं? Change the sound of the alphabet, letter or alphabet. अब accents क्या होते हैं? Accents, ठीक है? वो एक sign होता है. Please pardon my bad handwriting as I am not having the pen right now. Signs, they are the signs or the symbols, and इनकी पोजीशन क्या है? इनकी पोजीशन है above or below. Like there's a alphabet right here A suppose. So या तो उसके above कोई हम accent लगाएंगे या below. और ये क्यों लगता है? To change, इसकी जो function है to change the sound. To change sound. To change the sound. So accents क्या है? एक sign है या symbol है, ठीक है? और उनके position क्या है? या तो वो above होंगे किसी letter के या किसी letter के below. Like there is example which I have shown. आपको थोड़ा और clear हो जाएगा जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे. पहले ये देखिए समझिए. Position या तो below या above, ना right ना left. Okay? And इसकी वो उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है उसका टू चेंज द साउंड. टू चेंज साउंड. ओके, अब मैं आपको नॉर्मल हिंदी में अगर बताना चाहूँ तो मैं आपको क्या बोलूंगी? एक्सेंट्स वो होते हैं जैसे हमारे पास हिंदी में मात्राएं होती हैं. जैसे मैं लिखना है मिठी, मिठी. अब मैंने क्या किया? ये मात्राएं लगाई. अगर ना में लगाती तो बिना इन मात्रों क्या वर्ड था? मट कोई वर्ड नहीं था. तो मैंने इन पे मात्राएं लगाई टू चेंज इट्स साउंड. टू चेंज इट्स साउंड. इससे क्या हुआ? इसकी साउंड चेंज हो गई. इसको हमने प्रोनाउंस कैसे किया? मिठी, ऐसे प्रोनाउंस किया. सेम इन फ्रेंच हम मात्राओं को एक्सेंट्स बोलते हैं जो साउंड को चेंज करने में हेल्प करती है. जो लेटर की जो साउंड है उसे चेंज करने में हेल्प करती है. आई थिंक दिस पार्ट विल बी क्लियर. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. Acute accent, accent, acute. In French, we'll say accent. It's not accent. In English, it's accent, but in French, it is accent. यहाँ पे एक हम रूल अप्लाई करते हैं. The rule is in the previous video in numbers and alphabets also I've told this thing. जब जैसे हमारे पास on आता है तो it sounds as on.
इट्स ओ की साउंड देता है। सिमिलरली EN भी ओ की साउंड ही देता है। EN भी ओ की साउंड देता है। इट्स ओ। ओके, ओ। सो इट्स अक सॉन्ग। अब मैंने यहां तक आक पढ़ा, फिर इसको CEN को इकट्ठे पढ़ा, सॉन्ग। स, मेरी अल्फाबेट्स की वीडियो में मैंने आपको बताया था सी की साउंड, सो इट्स स ओ, सो इट्स सॉन्ग, तो इट्स अ सॉन्ग। और मैंने आपको एक नंबर्स वाली वीडियो में बताया था कि हमारे पास 6 वर्ड्स होते हैं जो जब लास्ट में आते हैं वो हो जाते हैं साइलेंट। उनमें से जो वर्ड एक आता है T, D, X, E, wait, let me clear it and make a new one. There is a table, a note for you that wait. Just this. तो यहाँ पे मैं लेटर लिख रही हूँ। फर्स्ट इज D, next is X, next is T, so the next is E, the further is S and Z. So I think, I hope it is clear to you. It's T, X, T, E, S, Z. These 6 words, whenever they come after any, sorry, at the last of any word, they are silent. Usually silent. Not always, usually they are silent. So I also write this thing also so that you can take a screenshot. They are silent. T, X, T, E, S, Z. They all are silent whenever they come at the last of any word. Okay, usually they are silent. Like here, we are having the example a song. मैंने यहाँ पे सिर्फ N तक पढ़ा, T को मैंने silent कर दिया. So it's a silent letter. I hope this is understood. Let me clear all this thing. Yeah, इसको आप एक बार, मैं इसको क्लियर नहीं करूंगी, आप इसको एक बार नोट बना लीजिए. Then I'll clear. Okay, so let's move further. अब ये अक्सो अक्यू हमने प्रीवियस में पढ़ा, प्रीवियस जो मैंने आपको टेबल दिया था, इस टेबल में कि हमारे पास एक्सेंट आता है एक्यूट एक्सेंट, तब हम वो पढ़ेंगे. फ्रेंच में से बोलते हैं अक्यू. अक्यू देखो यहाँ पे ई तो साइलेंट होता ही है, उसके बाद उससे पहले टी भी साइलेंट होता है, तो दोनों हमने अक्यू पढ़ा, अक्यू तो नहीं पढ़ा, अक्यू पढ़ा. ठीक है. सो इसका सिंबल है ऐसे. There is a line like this, like this, slant. इसमें कंफ्यूज नहीं आना है कि ये एक्सेंट एक ग्राव एक्सेंट है, वो भी दोनों सेम ही है. लाइक लाइंस में बस थोड़ा सा एंगल का डिफरेंट है, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेम. बट ये सेम सिर्फ लाइंस के एंगल पे है, लाइक ऑलमोस्ट की लाइंस सेम सेम लगती हैं. कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट द साउंड्स आर रियली डिफरेंट. सो दिस इज अ सिंबल एंड it only comes on letter E. लेटर E पे ही आते हैं और किसी पे नहीं आता है. ये एग्जाम्पल है एकोल. What is Ecole? Ecole is a school. The school where you go. Ecole. So मैंने यहाँ पे Ecole पढ़ा. यहाँ पे जो E था वो साइलेंट हो गया. Ecole. Next is elephant. Elephant. So it's elephant. Elephant. T यहाँ पे मैंने साइलेंट कर दिया. It's Ecole school. Elephant. अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे acute अक्सो लगाया है ये. So understood? What are the examples? Next, axograph.
ग्रेव एक्सेंट। सो ग्रेव एक्सेंट में आप देखिए, मैंने आपको बताया था ये अक्सो क्यू एंड अक्सो ग्राफ ऑलमोस्ट देखने में सिमिलर होते हैं, बट द साउंड चेंजेस, साउंड में डिफरेंस होता है, तो अब इसमें कंफ्यूज मत होइए। जो ये वाला साइन है दैट्स अक्सो अक्यू, वेट, दैट्स अक्सो अक्यू, एंड ये वाला जो साइन है दैट्स अक्सो ग्राफ। थोड़ा सा लाइंस में डिफरेंस है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाता है, बट आपको थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा कि क्या कहाँ पे लगता है। सो ये कहाँ कहाँ आते हैं, ए पे आता है, ई पे आता है और यू पे आते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ ई के एग्जाम्पल दिया, वरना ये ए ई यू तीनों पे आते हैं। ओके, एग्जाम्पल इज मैं, मेरी प्रोनाउंसिएशन देखिए, मैं। अब मैंने आर को यहाँ पे ह की साउंड दी, जब मैंने आपको अपने एबीसीडी वाले लेक्चर में बताया था, नहीं नंबर्स के लेक्चर में, जीरो में ज़ेहो पढ़ा था मैंने, तभी मैंने आपको डिफरेंस बताया था। आर को हम ह प्रोनाउंस करते हैं, इट्स र। तो आर साइलेंट, स्टार्टिंग में जो साइलेंट होता है, बाद में आके, सॉरी स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है, बाद में आके साइलेंट हो जाता है, इट्स लाइक ह। सो इट्स मैं, which is mother, and it's pa, which is father. Don't pronounce it as mer and par, it's ma and pa. Okay, mer is ma is mother and pa is father. I hope you understood this thing. Now the second is, no, next slide. Aksotrema, aksotrema or trema, इसका सिंबल काफी यूनिक सा, काफी सिंपल सा सिंबल है, डॉट डॉट्स, 2 डॉट्स आ जाओ। ये मत समझो किसी की आईज हैं, इट, मुझे भी ये लग रहा है, कई बार देखने में लगता है किसी की आईज बनाई है हमने, बट इट्स नॉट दैट, इट्स 2 डॉट्स, 2 डॉट्स। लाइक इसको जस्ट थोड़ा मैंने आपको विजुलाइज कराने के लिए इतना बड़ा बनाया था, बल्कि कैसे छोटे होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे एक्सेंट होता है, एंड इट कम्स ऑन ई आई यू, ई आई यू। यहाँ पे मैंने ई और आई की एग्जांपल दी, यू पे भी आता है। ओके, सो या एग्जांपल है नोएल, व्हिच इज क्रिसमस। क्रिसमस, द फेस्टिवल इज प्रोनाउंस्ड एज नोएल, देन इज कॉर्न, कॉर्न इज प्रोनाउंस्ड एज मे, 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 मे। ओके, मैंने आपको ये भी बताया था अपने लेक्चर में पीछे, आई और एस को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। अपने एबीसीडी वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आई और एस को जब इकट्ठे आते हैं तो हम उसको ए प्रोनाउंस करते हैं। इट्स मे, व्हिच इज कॉर्न, मे इज कॉर्न एंड नोएल इज क्रिसमस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। Axon Sedila accent. It's a very simple accent. It only comes on letter C, and its symbol is like this. Let me draw it also. ये हमेशा C के नीचे आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे C पे ही शो किया है। It's like that. अगर हम खाली सिंबल की बात करें तो ऐसे है, पर ये आता C के साथ है तो उसको ऐसे डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। Okay, example is Français is French. What you are studying? Your language, Français. So आप सब सोचेंगे like we are studying French and you should know French को हम French में क्या से बोलते हैं, it's French को हम Français बोलते हैं। So it's यहाँ पे जो C है काफी ज्यादा हाईलाइट किया हुआ मैंने इसे, तो उस पे सबीला एक्सेंट लगा हुआ है। नेक्स्ट इज गक्सो, गक्सो। अब देखो यहाँ पे आर को मैंने आर नहीं पढ़ा, मैंने गक। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा आएगा लिटिल बिट, उसके बाद यहाँ पे लाइक टाइप ऑफ, ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आ रहा है वो साइलेंट है, बट नॉट टोटली साइलेंट, थोड़ी सी इसकी साउंड आती है, बट मेनली ज्यादा सी की साउंड आती है, गक्सो, गक्सो। अब थोड़ा लगेगा कि हाँ ह बोल रहे हो, बट क्वाइट स्मॉल दैट हम जब फास्ट बोलते हैं आपको इतना पता भी नहीं चलता, तो नाम से आराम से अगर बोल गए गक्सो, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा हमने आर की ह की जो साउंड होती है वो मैंने बोली है, गक्सो। सो इट्स सी, सो कवर कर देता है। यहाँ पे भी हमने एक्सेंट यूज किया, सिबिला एक्सेंट, व्हिच इज नोन एज बॉय, गक्सो इज बॉय।
So the next accent is axocircumflex. Axocircumflex. It is like a cap. Its drawing is like a cap or two-sided triangle, you can say. So it comes on all the vowels A, E, I, O, U. 5 vowels. इन पांचों पे लगता है. Example है tet. Tet is head. अब यहाँ पे मैंने सिर्फ टी तक पढ़ा, ई मैंने साइलेंट कर दिया. Okay, so it's tet means head. Gato means cake. या अब यहाँ पे आपको, अगर आपने मेरी वीडियो प्रॉपर देखी थी तो आपको पता चलेगा कि जब मैंने आपको अपनी फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो में समझाया था EAU मींस अल्फाबेट्स और नंबर दोनों वीडियो में समझाया था. जब EAU आता है इट्स प्रोनाउंस्ड एज it is pronounced as and जब भी EU भी आता है वो भी की साउंड देता है. तो इट्स and और एक और चीज आई थी EAUX भी जब आता है तब भी वो यही साउंड देता है. ओके, सो इट्स गातो. तो यहाँ पे जो ये है टी के साथ उनके एयर अटैचमेंट, तो इट्स नॉट गाता, इट्स गातो. ओके, गातो. इट्स अ केक. ओके, tet is head and gato is cake. I hope this is understood. Now, thank you all for your patient listening and supporting me. So, यहाँ पे in this video we have covered all the 5 accents, which is acute, axoacute, axograph, axothrema, axosidilla, axocircumflex. Quickly एक रिवीजन ले लेते हैं. Yeah. What are accents? Accents are signs or symbols which are used above or below the letters, and it is used to change the sound of a letter or alphabet. Okay. So axoacute symbol इसका आपको बताया है ऐसे. So it comes on only letter E. इसके examples है ecole या फिर ecole को जैसे स्कूल बोलते हैं, and elephant. Next, axograph. Axograph, it's a symbol. A symbol is shown here, and you can see it comes on A, E, I, O, U. Yeah. Then example is ma, mother, pa, father. Next is axothrema. Symbol is the 2 dots, and it comes on E, I, U. Example is Noel, Christmas, and May, corn. Okay. Then axocircumflex, it's like a cap. It comes on all the 5 vowels A, E, I, O, U, and example is tet, head, and gato is cake. Okay, so thank you all for your patient listening, and it's a reminder for you that I have started a French for beginners classes, and batch starts 25th March. Mode is online, and you can get the information on my Instagram and my Facebook channel as well. Please do contact me for enrolling. Do enroll now. Thank you, class, for your patient listening. Bye for now.